इंसाइट्स देखना कि कंटेंट परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ऑडिट मतलब कि क्वेश्चन। चलो, so now we are going to learn how to run Instagram, Facebook ad. Please pay your 200% attention in this lecture because it's a specific profile in the market. Or if you know how to run Insta, Facebook ad, then it will be a very profitable skill for you because बहुत ज्यादा अच्छे मैनेजर्स मार्केटर्स नहीं है मतलब इन द इंडस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑन very aggressive basis are running the advertisement, and the best time is the new year time, जब हर कंपनी एड चलाती है तो इतनी सारे हायरिंग्स होते हैं फ्रीलांसर्स के एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेशली इन द फेस्टिव सीजन, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे टू क्रिसमस टू न्यू ईयर till mid-January, फिर Sankranti offer, then we have 26th January coming in, right? So this is a very critical time. Seasonal offer, New Year offer, festive offer. These are those time where you will get a tons of opportunity on running advertisement for the company. So this is an individual profile inside social media marketing. So marketing के अलावा, whatever we have learned so far in this entire previous lectures was organic social media marketing, but today we are learning paid social media marketing. It means how to run Instagram and Facebook ad specifically. Okay, so before I go any further, there are two things in Instagram when I'm talking about, and then I'll come to the Facebook ad. So there are two things: Instagram boosting and Instagram ad. ओके, इंस्टाग्राम पे हम बात करें तो फेसबुक में भी फेसबुक बूस्टिंग और ऐड होता है। ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बूस्टिंग एंड एड? सो व्हाट इज बूस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो आज का लेक्चर ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, सो maybe if you are joining here, but you can practically implement it through the recorded modules, because you will definitely need like what was the step next to that particular thing. ठीक है, तो ये आपको इसमें recorded session की बहुत जरूरत होगी। बाकी मैं इस सेशन को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बूस्ट दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज बूस्टिंग? बूस्टिंग मीन्स when you want to run the ad, it means when you want to run the ad but on the existing post, that is boosting. जब भी आपने कोई पोस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, which you have already published and you want to run ad on that is known as boosting. ऐसा कंटेंट जो पब्लिश्ड है और उस पे हमको एड चलाना है वो होता है बूस्टिंग, सिंपल। और ad क्या होता है? Like what is Instagram ad? What is Facebook ad? Which means when we are This एक call सेकंड is है, ये now मीटिंग being रीस्टार्ट recorded. होगी फॉर सम रीजन। एक सेकंड, कोई ग्रुप पे मैसेज कर दो ना प्लीज, रिजॉइन करके। कुछ लोग रिमूव हो गए आई गेस। This call is now being recorded. All right. So boosting is whenever you want to run advertisement on your published content. And advertisement means when you are choosing new post, when you are choosing new creatives, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रोफाइल्स ऐड चलाती है और हमको दिखता भी नहीं उनके प्रोफाइल पे कि वो ऐड चल रहा है, लाइक दे हैव नॉट पोस्टेड इट एनीवेयर, इट मींस वो ऐड चला रहा है, ठीक है। Advertisement is whenever you want to run advertisement on a new creatives, on a new images, new videos, and you don't want to reflect in your profile कि भाई हम ऐड चला रहे हैं, मतलब वो पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे नहीं दिखेगा। दैट इज इंस्टाग्राम एड और फेसबुक एड। सो बूस्टिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट पे होता है और एडवर्टीजमेंट नए कंटेंट पे चलाया जाता है, ठीक है। नाउ वन मोर डिफरेंस is when you are boosting a post, then you can, if it is Instagram, अगर आपको Instagram का post boost करना है तो that you can do within the application, या आप एप्लीकेशन से ही कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे मैंने Instagram पोस्ट खोला और अगर मुझे बूस्ट करना है, I'll tell you also how to boost it, तो हम यहाँ आगे जाके सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही बूस्ट कर लेंगे, ठीक है।
बट अगर हमें पोस्ट करना है, इफ यू वांट टू sorry, if you want to run the advertisement, then you cannot run advertisement from Instagram application. For that you need a Facebook ad manager. अगर आपको Instagram का भी ad चलाना है या Facebook का भी ad चलाना है, तो that for that you need a Facebook ad manager. And to run your advertisement through Facebook ad manager, there's one more requirement. You need a Facebook page. और वो Facebook page आपके Instagram से connected होना चाहिए. ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी. अभी मैं बूस्टिंग पे वापस आती हूँ. लाइक व्हाट इज बूस्टिंग? व्हेन यू वांट टू रन एडवर्टाइजमेंट ऑन योर एक्जिस्टिंग पोस्ट, एंड दैट यू कैन डू फ्रॉम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन इटसेल्फ. So right now here you are seeing one post that I have published yesterday. It is a carousel post. अच्छा, अगर आप किसी carousel पे रन कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है चीज, post cannot be boosted with a music. Your ad will deliver without a music. वो बोल रहा है कि ऐसा इंस्टाग्राम का कोई भी म्यूजिक ले रहे हो, वो या आपकी रील में हो या आपके पोस्ट में हो, वो इंस्टाग्राम का म्यूजिक हो या किसी ओरिजिनल प्रोफाइल का म्यूजिक हो, म्यूजिक अगर है इंस्टाग्राम से ली हुई, उस पे आप एडवर्टीजमेंट नहीं रन कर सकते हो. उसमें आप ऐड नहीं रन कर सकते हो. यहाँ पे बोल रहा है अगर आप करोगे तो ये बिना ऑडियो के बूस्ट होगा. चलेगा? चलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है. बट लेट्स से इफ दिस इज अ स्पेसिफिक रील एंड आई वांट टू बूस्ट इट. अब यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का क्या ले लिया है, म्यूजिक लिया है. इट इज अलाउइंग मी, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज अलाउइंग मी. नहीं दिखाता है इसमें एक्चुअली वो. लेट्स गो अप. It is allowing me right now, but in most of the cases it doesn't. It पता नहीं, मैं तो बहुत शॉक हुई देख के कि अलाउ कर रहा है. बट यूजुअली ऐसी कोई भी प्रोफाइल या ऐसी कोई भी रील, ऐसी कोई भी पोस्ट जिसमें म्यूजिक लिया है हमने इंस्टाग्राम का या किसी ओरिजिनल ऑडियो का भी, वो बूस्ट नहीं करने देता. या तो आपको बाद में जाके डिक्लाइन हो जाएगा आपका वो एड, और फिर बोलेगा कि आप कुछ ओरिजिनल, अगर मैं खुद की, अगर मान के चलो ये मैंने खुद बोला है, इसको अगर मैं ऐड करना चाहूंगी तो ये मुझे मना नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव यूज्ड माय ओरिजिनल वॉइस हियर. ओके, सो एनी पोस्ट without a music can be boosted. Any reel without any music can be boosted. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट अगर आप इंस्टाग्राम का म्यूजिक या किसी भी लाइब्रेरी का म्यूजिक ले रहे हो, तो वो ऐसे उसको नहीं बूस्ट करने देगा अगर आपने इंस्टाग्राम से म्यूजिक लिया तो, इन एन नटशेल. ठीक है, तो इसका मतलब है अभी मैं इसी पोस्ट को लेती हूँ, ये वाला. ठीक है, इसमें कोई म्यूजिक यूज नहीं किया मैंने इसको यूज किया बूस्ट करने के लिए. क्या क्या ऑप्शन से रखते हैं. सो सबसे पहले इट इज आस्किंग अस फॉर दी गोल. हमसे पूछ रहा है कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चला रहे हो आप एड, व्हाट डू यू वांट. सो डू यू वांट मोर प्रोफाइल विजिट्स, और डू यू वांट पीपल टू गो टू योर वेबसाइट्स, और डू यू वांट पीपल टू मैसेज यू. तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है: रीच, क्लिक्स एंड इंगेजमेंट. देखो, प्रोफाइल विजिट मतलब कि रीच, हम चाहते हैं लोग हमारी प्रोफाइल को जाने. ओके, मोर वेबसाइट विजिट्स मतलब कि हमको कन्वर्जन है हमारा गोल यहाँ पे. ठीक है, या तो हम चाहते हैं कि लोग क्लिक्स करें कहीं पे. और थर्ड है इंगेज करें, मतलब चैट विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. आई वांट टू जनरेट लीड्स, आई वांट मोर एंगेजमेंट इन माय प्रोफाइल, आई वांट टू जनरेट लीड्स. तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन. ठीक है, बूस्टिंग में 3 ही ऑप्शन रहते हैं. व्हेन यू रन इंस्टाग्राम एड यू विल हैव मोर ऑप्शन. वहां पे और ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे 3 ही रहेंगे हमारे पास. सो which is better? All 3 of them, it depends on the business objective. Let's take some examples. As Yashwini is having a very, let's say if she is having a brand new page, ठीक है, तो हमको एक चीज बहुत अच्छे से बताई, मैंने कंटेंट स्ट्रेटेजी में बताई थी कि हमारा प्राइमरी गोल किसी भी नए अकाउंट का या बेबी अकाउंट का, जो माइक्रो अकाउंट है, 1000 से अंदर फॉलोअर है अगर किसी के, सो आवर प्राइमरी गोल शुड बी अवेयरनेस. हमको पहले अवेयरनेस बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली लोग आपको देख के अभी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमारा वो ट्रस्ट नहीं है. ठीक है, and especially for the service based business, like if you are a digital marketer and let's say you want to run advertisement, okay, so also your primary objective should be always profile visits or more messages, कि लोग आपको इंक्वायर करेंगे, आपकी प्रोफाइल के बारे में जाने, क्योंकि डायरेक्टली कोई आपकी फ्रीलांसिंग सर्विस नहीं लेगा.
क्योंकि ये सर्विस है, लोग आपको जाके समझेंगे आर यू वैलिड ऑथेंटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस विल बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. Let's say if Yashvi want to run advertisement for a coming offer, लेट्स से न्यू ईयर ऑफर में चलाना है, ठीक है, भले ही उनके कम फॉलोअर्स है, बट शी वांट्स टू रन दी एडवर्टीजमेंट, शी कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, especially if you have a product based business and you want to run advertisement in specific situations, like when you have some objectives in mind for drastic sales or drastic reach or drastic visits in your profile, you want people to take actions very instantly because you have a very short window of time for that offer. तो हम ऑर्गेनिकली वेट नहीं करेंगे हाथ में हाथ करके कि चलो हुआ तो ठीक नहीं, सेल्स चाहिए, हमारा ऑफर चल रहा है, बिल्कुल चलाना चाहिए उस टाइम पे ऐड, ठीक है. बट नॉर्मली टाइम पे किसी भी बिजनेस को जब वो ऑफर नहीं चला रहा है, जो सिर्फ चाहता है कि हमको लोग इंक्वायर करें, लेट्स से आई हैव अ वेरी, आई एम वर्किंग फॉर अ बिजनेस जो जिनका एक महेश्वरी साड़ीज का न्यू बिजनेस है and they want to sell online. Okay, so for them, they're when they're not running any offer throughout the year, if in middle they want to run an advertisement, it should be more messages because people should inquire. Okay, if I'm having a very new account working for a client and running their first advertisement in their profile, then it should be more profile visit, it should be awareness और वेबसाइट क्लिक्स जब आप ऑफर चला रहे हो, ठीक है, या जब आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर एनी कोच और कंसल्टेंट जिनका सर्विसेज है, लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर फिटनेस ट्रेनर एंड इफ दे आर आल्सो रनिंग ऑफर्स लाइक 45-day fitness training program is starting from January 15th. Okay, for that also they want faster enrollments because the time is hitting and they are also running some offer, New Year or Fit 2024 offer, something like that. तो भी more website visits पे हम objective ले सकते हैं, ठीक है. तो in case of offers, we will go with more website visit. In case of brand awareness, we will go with profile visits and more messages. ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी आप वेबसाइट विजिट जा सकते हो अगर आपका वेबसाइट है तो, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो मोर मैसेजेस पे जाके लोगों का इंक्वायरी फॉर्म लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं, लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर यशवी, शी इज हैविंग अ वेबसाइट, सो डीएम से बेटर है लोगों को वेबसाइट पे पहुंचाना, बिकॉज यू डू नॉट have to give them about the product detail, what ranges we have. It's better to link them to the website where they can figure out everything while in taking the product description glance, right? वो product description में उनको सारी price या price सब category का option मिल जाएगा उनको वहीं पर. So website visit is good for objectives like awareness and also the sales. More profile visits is good for service-based business when they want to build awareness and also for the product-based businesses. More messages जब किसी का website नहीं है और वो lead generate अपने Instagram पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो अभी अपन लेट्स से अपन सिलेक्ट करते हैं मोर वेबसाइट विजिट. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, इट इज आस्किंग अस फॉर द ऑडियंस, ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑडियंस मतलब कि वो पूछ रहा है डिफाइन whom would you like to show your advertisement, आपको अपना एडवर्टीजमेंट किसको दिखाना है, whom would you like to show your advertisement to, that's your audience. So यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे क्रिएट योर ऑडियंस आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ सेव्ड है, मैंने कुछ ऐसी सेव करके रखे हैं where I was just showing this demo to different batches. तो क्रिएट योर ओन पे जाओगी, ठीक है. सेव योर ऑडियंस का मतलब मैं बताऊंगी बाद में क्या होता है. राइट नाउ क्रिएट योर ऑडियंस, whom would you like to show, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट द लोकेशन, किस लोकेशन के लोगों को ऐड दिखाना, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पैन इंडिया लेना चाहिए, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द better option is target some specific cities. It will give you better audience according to your let's say if Yashvi is having a jewelry business, silver jewelry business, तो भाई मेरा उनका ऑडियंस कहाँ का होगा जो सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस ऑनलाइन लेगा, आई गेस टायर 1 टायर 2 सिटीज, है ना. मैं नहीं जाऊंगी टायर 3 पे, हो सकता है वहां पे सिल्वर ज्वेलरी की अभी तक लोगों का मेंटेलिटी ये होगा कि लोकल शॉप से खरीदते हैं, ठीक है ना. तो हम टायर 1 टायर 2 पे जाएंगे. तो बिजनेस का सबसे उनका ऑडियंस हर जगह है, गांव में भी बैठा है, बट वी विल फोकस ऑन the major areas where your target audience will be more. Let's say I'm working for an IT company. उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, स्मॉल बिजनेस
स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? मेट्रो सिटीज में। बैंगलोर एक तो हब है सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स का। फिर आई विल टारगेट मुंबई, आई विल टारगेट दिल्ली, आई विल टारगेट चेन्नई, आई विल टारगेट हैदराबाद। और मुझे लगता है कोलकाता में थोड़े रीजनल बिजनेसेस हैं, तो वहां नहीं जाऊंगी मैं। तो आई विल फिगर आउट लाइक every business, like when you're working for a client, you can ask them like what are the top 7 cities you feel like your target audience must be, you think they are there, okay, they are residing there. So we can select those specific regional audience. Now let's imagine, ये तो पैन इंडिया की बात हुई, बट कोई ऐसा क्लाइंट है जो जिसका रेस्टोरेंट बिजनेस है और उसके लिए तो भाई पैन इंडिया तो काम का नहीं है। मान के चलो मैं कैफे के लिए काम कर रही हूँ और वो कैफे यहाँ पे हैदराबाद में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उनकी करेंट, सबसे पहले तो उनका एड्रेस डाल दूंगी यहाँ पे, एग्जैक्ट एड्रेस विद द प्लॉट नंबर। तो सपोज अभी मैं यहाँ पे करंट लोकेशन, मान के चलो मैंने करंट लोकेशन ले लिया क्योंकि यही लोकल बिजनेस है, या यहाँ पे एड्रेस डाल दो। फिर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की रेंज पे हमको सिर्फ एड दिखाना है, क्योंकि भाई वो कौन है, उसका बिजनेस रेस्टोरेंट का है। हम चाहते हैं कि दोज पीपल हु आर living or coming to this 5 kilometer range, they are only our target audience because they can only come to our shop. If it is a restaurant, if it is a boutique, if it is a salon, for them, only local audience will be important. Just say my sister, she's a photographer. Okay, so and she do some photo shoots, family photo shoots और ये सारा काम है उसका। तो वो क्या करती है, वो सिर्फ अपने 3 से 5 किलोमीटर वेर एवर शी इज लिविंग, शी जस्ट सेट दी 3 to 5 किलोमीटर रेंज और 10 किलोमीटर जहां तक वो ट्रेवल कर सकती है लोगों के फोटो शूट करने के लिए, और जहां तक लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं और दे कैन कम टू द स्टूडियो। सो आई विल सेट द लोकेशन एंड सेट द किलोमीटर्स व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ लोकल ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल के उसमें 3 से 5 किलोमीटर का एग्जैक्टली यहाँ पे कर देंगे व्हेन यू आर वर्किंग फॉर लोकल बिजनेस। और रीजनल बिजनेस है यहाँ पे हम मल्टीपल रीजन्स पे फोकस कर रहे हैं, देन वी कैन टारगेट द लोकेशंस हियर। सपोज आई एम टारगेटिंग यहाँ पे इंदौर। If a business is of MP, so Indore, Bhopal, जबलपुर, वहां की टॉप सिटीज को हमने टारगेट कर दिया अगर वो सिर्फ स्टेट बिजनेस है तो, ठीक है। आफ्टर दैट, इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? मतलब ये वो चीज पूछ रहा है कि आपके टारगेट ऑडियंस ऐसा क्या सर्च करते हैं या उनका ऐसा क्या इंटरेस्ट है जहां पे आपको लगता है कि आपका बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट उससे रेजोनेट करता हो। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। Yashvi is having a jewelry business. She should show her advertisement to only those people who are following some pages like jewelry pages, who have recently interacted with some uh, jewelry related post or any specific thing, not only jewelry, but some people who have searched on, I would say, necklace or earrings or silver coin, silver jewelry, whatever it is. That what she thinks कि मेरा ये प्रोडक्ट है जो लोग सर्च कर रहे हैं, या ऐसा कुछ चीज जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो। सो वो कीवर्ड्स हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। लेट्स से ज्वेलरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग, जूल, हैंडमेड ज्वेलरी, आर्ट ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ज्वेलरी स्टोर, आई लव ज्वेलरी, और फिर यहाँ पे स्टेट ज्वेलरी। तो कुछ कुछ ज्वेलरी के खुद ही कीवर्ड्स दे रहा है, जैसे हम हैशटैग सर्च करते वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे शी कैन सिलेक्ट ज्वेलरी, रिंग ज्वेलरी, और शी कैन सिलेक्ट हैंडमेड ज्वेलरी भी ले सकते हैं। और दोज पीपल हु हैव रिसर्च्ड अबाउट इट, ऐसे लोग जो हैंडमेड ज्वेलरी देख रहे हैं वो उनका उसका मतलब ही कि ऑर्नामेंट्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। तो कोई भी ज्वेलरी से रिलेटेड वाला कीवर्ड वुड बी परफेक्ट फॉर दैट। Let's imagine we are working for IT company. Their target audience must have the interest, or they must be searching or following such pages or posts which are related to mobile app development,
है ना, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐप स्टोर, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे प्रोडक्ट को भी डिफाइन करते हैं और साथ साथ में जो लोगों का इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जो लोग वेबसाइट बनाने या मोबाइल बनाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट में भी। तो हम ये भी साथ साथ में अपने प्रोडक्ट के साथ साथ उनका और क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 to 17 कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए। ठीक है, द मोर यू टारगेट, the better it will be for you, because it doesn't matter that you are showing your advertisement to 1 lakh people, but it's important to show our advertisement to 500 people who are very ideal to us, because those people will only take actions. हमको क्वांटिटी से नहीं, राइट आइडियल टारगेट ऑडियंस से मतलब है। ठीक है, तो बहुत मार्केटर्स ये बोलते हैं कि आपको कीवर्ड्स उतना टारगेट नहीं करना चाहिए, और क्लाइंट्स के मैं बताती हूँ ये चीज होता है कि couple of times when I was running advertisement, they mentioned Prachi, our audience, जैसे अब यहाँ पे आपको 3.3 मिलियन टू 3.9 मिलियन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऑडियंस की रीच कितनी हो सकती है, एस्टिमेटेड टारगेट ऑडियंस कितना है अभी आपका। जैसे जैसे मैं इंटरेस्ट ऐड करती जाऊंगी ये कम होते जाएगा। ठीक है, सो आई ऑल्सो रन द एडवर्टीजमेंट व्हेन द टारगेट ऑडियंस वाज अराउंड 500-600, इतना रीच भी गए। बट क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई उन्हीं लोगों को दिखे जिसमें सच में वो कोई एक्शन लेंगे, अदरवाइज गोइंग जनरली टू पीपल, बिकॉज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस तो फिर हम जा सकते हैं थोड़े ब्रॉड ऑडियंस को भी, बट व्हेन योर ऑब्जेक्टिव इज सेल्स स्पेशली, देन वी शुड बी सिलेक्टिंग द लेस इज मोर हियर। ठीक है, लेस इज गोल्ड हियर, कि यू विल बी ओनली बी विजिबल टू दी very appropriate and ideal people who will be exactly interested in your product services। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको डालना पड़ेगा, कीवर्ड्स दैट, व्हाट आर दीज इंटरेस्ट, द कीवर्ड्स दैट डिफाइन योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, or those keywords that people must be interested in. As I mentioned to you, that if you are having a mobile app development company, then people will be interested in mobile app, and also their area of interest should be technology. Both these people will be interested in your content, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी देख रहा है वो जरूरी है कि हो सकता है उसको अपना एप्लीकेशन अपडेट करवाना हो, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करानी हो, या अगर वो इंटरेस्ट होगा मोबाइल एप्लीकेशन का कंटेंट देखने में फॉर श्योर। ठीक है, तो ऐसा क्या इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे यशवी के लिए अपार्ट फ्रॉम हर प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड, शी कैन आल्सो टारगेट styling. Okay, she can also target I would say traditional wear. Okay, they both are not having jewelry in keyword, but both of these interests like traditional wear or Indian ornaments or Indian um, मैम आई टारगेट मोस्टली वेडिंग्स एंड फंक्शंस, क्योंकि इस तरीके के कीवर्ड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, लाइक हल्दी सेरेमनी हो गई, सो पीपल सर्च हल्दी सेरेमनी एंड दे कैन फाइंड रिलेटिव प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे लोग इस चीज पे इंटरेस्टेड होंगे, शी हैज टारगेटेड वेडिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको इंटरेस्ट करना है, एटलीस्ट 15 to 17 इंटरेस्ट हमको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव एज एंड जेंडर। ये चीज आप अपने इनसाइट्स में जब देखे थे, अगर आपने ऑर्गेनिक जब हमने देखा था, जब आपको ऑर्गेनिक में ये दिख रहा है कि आपका ऑडियंस मेल ज्यादा, जैसे ज्वेलरी बिजनेस है तो ऑब्वियसली फीमेल सिलेक्ट करूंगी मैं यहाँ पे यशवी के लिए। बट इफ आई एम वर्किंग फॉर अ क्लाइंट जो इसका आईटी कंपनी, वो दोनों एज अ डिजिटल मार्केटर आपके मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। एज रेंज क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर फ्रॉम 18 to 55 ईयर ओल्ड, 18 भी नहीं, 25 to 55 या 27 to 55 लोग हैं आप। इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी ज्वेलरी बिजनेस, तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जेनजीज टू मिलेनियल्स होंगे, मिलेनियल्स 45 तक के लिए। ठीक है, तो ये हमने 18 to 45 ईयर एज ले लिया, जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बाद भी करते हैं बट सबसे ज्यादा एज ग्रुप ये होगा, और जेंडर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस डेटा वाइल चेकिंग योर इनसाइट्स ऑर्गेनिकली, कि भाई मुझे जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौन है, तो 18 to 33 एज या जो भी। और इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो सीन द लोकेशन व्हेन फ्रॉम वेयर पीपल आर फॉलोइंग यू द मोस्ट।
लेट्स से व्हेन यू आर नॉट हैव फिगर्ड आउट कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट लोकेशन है, तो अपने इनसाइट्स पे जाओ, देखो ऑर्गेनिकली आपको सबसे ज्यादा लोग कहाँ से फॉलो करते हैं, उन्हीं लोकेशन को हम यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज पीपल फ्रॉम दीज लोकेशन आर शोइंग बेटर इंटरेस्ट, इफ यू टारगेट दोज लोकेशन इन योर एडवर्टीजमेंट यू विल गेट इवन बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम उसका ऑर्गेनिक इनसाइट्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड देन नथिंग, आप यहाँ पर डन पे क्लिक करो, एड अ नेम टू योर ऑडियंस। एडिंग नेम टू योर ऑडियंस ये सिर्फ हमारे लिए रहता है बेसिकली। अब आज हमने ऐड चलाया, हमको हो सकता है एक हफ्ते बाद फिर से चलाना हो, अब टारगेट ऑडियंस तो सेम ही रहेगा, लेट्स से फॉर यशवी टारगेट ऑडियंस विल बी द सेम एनीवे, करेक्ट? तो Yes. हम क्या करेंगे, ऑडियंस को सेव करके रखेंगे ताकि हमको बार बार ये मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया ज्वेलरी से सेव। ठीक है, तो उसके बाद ये एक डिफाइन योर ऑडियंस हो गया अपना। नेक्स्ट पे जाते हैं, देन इट आस्क्स अस बजट। ओके, सो व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली बजट, और कितने दिन का एड चलाना चाहिए हम पहले तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन, आई टेल यू वन थिंग, व्हेन यू रन एडवर्टीजमेंट then it takes almost 1 day for algorithm to collect the right data of people. Okay, so you cannot run advertisement for only a day or two. आपका एडवर्टीजमेंट सही में रन चालू होता है आपने जब उसको चालू किया तो उसके 24 घंटे बाद। कभी भी एड चलाओ और वो 6 घंटे में जाके देख रहे हैं कैसा, नो, वो एक दिन तो वो पूरा कलेक्ट करने में लेता है कि एग्जैक्ट आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो हमको एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट 5 डेज के लिए चलाना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद तो मैं क्लाइंट का मर्जी होता है कि भाई अगर हमारा ऑफर इतने दिन का है तो उतने दिन का चलाना है, और इफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर विश, सो वी विल कीप इट एटलीस्ट 5 डेज। एवरेज 10 डेज का चलता है और एट मोस्ट 15 to 20 डेज का चलता है। That's what I'm sharing based on what the client range I have run the advertisement for them. That's based on that. ठीक है, तो 5 days तो एटलीस्ट होना चाहिए। एट मोस्ट का कुछ सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, बट एवरेज हम 10 days का चलाते हैं और 20 days एट मोस्ट चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो ड्यूरेशन दैट शुड बी एटलीस्ट 5 days, मैंने कर दिया। या तो यहाँ पे ऑप्शन एक और है, रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट। मतलब मैं कोई सेट नहीं कर रही हूँ बाउंड्री, चाहूँ तो मैं इसको कभी भी पॉज कर सकते हो, अगर आपने ड्यूरेशन सेट किया तो भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि मुझे कब तक चलाना है, मैं देखूंगी कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड देन आई विल डू इट। सो इट्स अप टू यू, एंड यू कैन ऑल्सो सेट द डेज, आप 5 दिन 6 दिन का डे सेट करके भी ये चीज कर सकते हो कि यू कैन पॉज इट। द स्टीयरिंग इज इन योर हैंड, दैट स्विच ऑन स्विच ऑफ इज इन योर हैंड। आपको लग रहा है कि 3 दिन हो गए, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल गुड फॉर यू, देन यू कैन पॉज द कैंपेन, यू कैन पॉज द एड। If you feel like no, it is working good, it's sixth day and you want to stretch it, जब आपको नहीं पता कि कब तक चलाना है, हो सकता है मैं 6 दिन, हो सकता है 20 दिन, तो 6 दिन के बाद मैं डिसाइड करूंगी चलाना है, तो आप यहाँ पे रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब बजट के बारे में बात करते हैं। सो बजट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ये बहुत डिपेंड करता है बिजनेस पे, बिजनेस का टाइप क्या है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस लाइक यशवीज which is a jewelry business, their target audience are very high, बहुत ज्यादा target audience है jewelry का, तो यहाँ पे मसला नहीं है, we can select, we can set even the budget, like if your target audience are lot, if your target audience are in abundance, then for jewelry business, for lifestyle brands, for IT companies, their target audience are very much, तो हम कम बजट में भी अच्छा चल सकता है हमारा एड। ठीक है, ये डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस। नाउ लेट्स से आई वाज वर्किंग फॉर दिस कंपनी हु मेक एक्सरे मशीन। ठीक है, अब उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, हॉस्पिटल्स, और वो भी हैदराबाद के, तो भाई उनका टारगेट ऑडियंस ज्यादा है नहीं। जब आपका टारगेट ऑडियंस ज्यादा नहीं रहता तो आपको पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम के डेटा के बारे में बात है, जब इंस्टाग्राम के पास डेटा बहुत है तो कम में भी आपको दिखा देगा, बट इंस्टाग्राम के पास डेटा कम है तो उसको मेहनत ज्यादा लगेगी, तो वो थोड़ा सा आपसे पैसे ज्यादा लेता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द amount of your audience, about your target audience, who they are, if they are very easily available in the market, if your target audience are a lot, let's say for any lifestyle brand, for any specific food brand, FNG में कर लो या
if it is any kind of फिटनेस रिलेटेड कंटेंट, इनके टारगेट ऑडियंस बहुत है. अब मैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती हूँ और उनका टारगेट ऑडियंस अगेन हॉस्पिटल्स है. और इफ आई एम वर्किंग फॉर लेट्स से कुछ यूनिक नीश और क्या है हमारे, भाई जो कि Am I मैम audible? वीडियो इज पॉज्ड. अभी आ रहा है? हाँ अब आ रही है. ठीक है, थोड़ा आज नेटवर्क दिक्कत कर रहा है. Okay, fine. So, those, like production houses, जिनका target audience B2B है, उनका भी कम रहता है. Like B2B businesses के target audience थोड़े कम रहते हैं. Let's say I am working for a production house who are making machineries um, for making chips or for making ABC thing, whatever it is. Like जैसे मैंने एक्सरे मशीन का, तो उनका टारगेट ऑडियंस थोड़ा कम रहता है, B2B थोड़ा कम रहता है. बट बी डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेसेस के टारगेट ऑडियंस बहुत होते हैं. जहाँ टारगेट ऑडियंस बहुत है, बजट कम लगता है. जहाँ पे टारगेट ऑडियंस आपका, और जैसे आप, अगर मैं यहाँ पे डिटेल्ड टारगेट ऑडियंस डालूंगी, जितना डिटेल टारगेट ऑडियंस और जितना कम होते जाएगा मेरा ऑडियंस, उतना पैसा ज्यादा लेगा. क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है कि मैं बहुत आइडियल ऑडियंस तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जाता है आपके. ठीक है. सो यहाँ पे डेली बजट एटलीस्ट 300 होना चाहिए. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है स्मॉल बिजनेस ओनर पे टू बिग बिजनेस Prachi, बिजनेसेस. can you, sorry to interrupt, can you repeat? I got confused. For B2C businesses, more audiences there, so we need lesser budget, is what you're trying to say. हाँ, एक सेकेंड. आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ गया. B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो रहते हैं, उसका टारगेट ऑडियंस थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली डायरेक्ट टू कस्टमर्स बिजनेस पे. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन डिपेंड्स ऑन द नीश इंडस्ट्री टाइप फॉर श्योर. बट B2B का टारगेट ऑडियंस कम रहता है, इसलिए बजट थोड़ा हाई लगेगा हमको वहां पे. डायरेक्ट टू कस्टमर्स में थोड़ा कस्टमर हमारे पास वॉल्यूम अबंडेंस में रहता है, तो हमारे बजट कम रहेगा. इन अ conclusion, I would like to say that if your target audience are very detailed or they are very less, then your budget will be high. If your target audience are more and you have targeted the general audience, then your budget will be less. ठीक है. तो कम ऑडियंस रहेगा तो ज्यादा बजट लगेगा, ज्यादा ऑडियंस है तो कम बजट लगता है. Vice versa. What about the real estate? रियल एस्टेट के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत कस्टमर्स होते हैं. सो रियल एस्टेट का डिपेंड करता है. अगर आप लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एन एजेंसी, ओके, लेट्स से मैं काम कर रही हूँ nobroker.com के लिए, उनके कस्टमर्स बहुत हैं. हाँ, लोकल स्पेसिफिक रहते हैं. अगर मैं हैदराबाद में चला रही हूँ एड, तो लोकल स्पेसिफिक रहेंगे, बट टारगेट ऑडियंस बहुत रहता है रियल एस्टेट का. ठीक है. अब बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बजट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स entirely. But मैम आवाज नहीं आ रही. हाँ, एक सेकंड. मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी. Okay, so what I was saying is the budget should be at least 500. Sorry, at least 300. Good budget is 500. 500 to 800 is good budget. And best budget is 1000 per day at least. हम अगर अच्छा बजट जा रहा है तो 1000 पर डे ले सकते हैं हम. और एवरेज बजट जो रहता है क्लाइंट का, वो रहेगा 500 to 800. और बहुत ही स्टार्टअप है तो फिर वो उनका एटलीस्ट हमको 300 पे चलाना चाहिए. Okay, on a trial basis. Okay, so this should be the budget. Ma'am, please can you repeat it again? I could not hear the voice. Is it getting disturbed now also? Now it's clear. So, हाँ, 300 should be the at least budget per day. Per day के बारे में बात करें, 300 per day का at least रहना चाहिए. Average budget 500 to 800, which is good. And if your budget is 1000, then it is best. ठीक है.
It depends on the days, it depends on the client's budget as well, but you can give them this particular thing. Usually I run the budget of 6 to 700 for any client, at least. It gives a good kind of reach and engagement or any kind of sales. Okay. Yes, Yashvi? मैम अभी मैंने अपने वो इनसाइट्स चेक करे, व्हाई डू आई हैव इस्तांबुल एज अ टॉप लोकेशन, लाइक इट इज शोइंग इन द टॉप लोकेशंस। तो मैंने उसमें देखा चूरू इज लाइक बेसिकली मेरा खुद का रीजन, देन इट इज इस्तांबुल, इट इज हैविंग 6.1%, उसके बाद अदर जो सिटीज या स्टेट्स है इंडिया की वो। But I have never selected while running ad or boosting a post. I have never selected this location is Istanbul. Okay. So you're living in there or you're living in India? No, I am from Rajasthan. You're from Rajasthan. हाँ. Okay. Do you But- ship worldwide? हाँ? Do you ship worldwide? No. No. Okay, fine. तो फिर वो लोकेशन हम like आप ये देखो कि आपका टारगेट ऑडियंस वहां का है क्यों। सबसे पहले तो क्या आपने कोई ऐसे ट्रेंडिंग ऑडियो यूज किया था? और मतलब होता है कई बार, लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑडियो, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. डिड यू सेट एनी लोकेशन इन योर पोस्ट ऑफ इस्तांबुल बिफोर? No, ma'am. डिड यू टारगेट एनी हैशटैग? Might be, I might have used, but I don't think so that कि मैंने कभी इस्तांबुल से रिलेटेड कुछ किया है। हाँ, तो ठीक है, उसको अपन फिर इग्नोर करेंगे. अच्छा, ठीक है। हाँ 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 हाँ. और मैम देयर इज वन मोर ग्राफ अबव दैट, टॉप लोकेशंस के ऊपर ग्रोथ का एक ग्राफ आता है ना? या इट इज शोइंग, मतलब डे वाइज वो शो करता है, तो व्हाट इट एग्जैक्टली दैट ग्राफ इज अबाउट? डे वाइज शो कर रहा है क्या? एक काम करो, ये इनसाइट से रिलेटेड है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लो, लेके रखो, लास्ट में मुझसे पूछना. हाँ ठीक है, ओके। ठीक है. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके या शुरू या मैम, आप जब मैसेजेस का बता रहे थे, मैंने अपने प्रोफाइल पे से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आई हैव सेलेक्टेड दिस मैसेजेस वाली बूस्टिंग पोस्ट. माय एज वाज, आई हैव सेलेक्टेड द एज ऑफ बिटवीन 24 to 45, ठीक है? तो बट उसमें मोस्टली मेरे पास क्या होता है, बच्चों के मैसेजेस आते हैं, लाइक ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अजीब सा था कि व्हाई एम आई गेटिंग किड्स मैसेजेस. सो आप टारगेट ऑडियंस अपना और बढ़ा दो, 30 से कर दो. ओके, 30 to 55 कर दो फिर. ठीक है. और ये पता कैसे चलेगा, लाइक व्हाट एज ग्रुप ऑफ पीपल आर सीइंग माय एड? इज देयर एनीथिंग फ्रॉम व्हिच वे आई कैन कंफर्म इट? No, we have to give. Yeah, you are absolutely right here. I was about to say कि usually weekends में social media का use ज़्यादा होता है. So we should also take consideration of the days when your audience will be mostly active on that platform where you are running ad. तो इसलिए अगर आप इंस्टा एड चला रहे हो तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम यही होता है. लाइक आप अपने वीकेंड्स को काउंट करो. फेसबुक के लिए भी जब हम लिंक्डइन का एड चलाते हैं ना, लाइक वी आर नॉट लर्निंग लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट, बट इट इज यूजुअली इन द वीकडेज, क्योंकि वहां पे वीकडेज पे ज्यादा यूज होता है. तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर करता है. Okay. Also, it might happen sometimes that maybe, there is a query wherein someone is asking ki monthly, what will be the cost of running ads. So in such cases, of course, we will not charge for every day running an ad. तो हमें minimum कितने days का threshold लेना चाहिए in a month accordingly to set up plan? So we can basically decide based on the objective. तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स होता है ना, तो हमारा बजट थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत आइडियल रहेगा. तो अवेयरनेस रहेगा तो हम टारगेट ऑडियंस उतना आइडियल नहीं रखेंगे तो चलता है, मतलब इंटरेस्ट उतने ज्यादा हम टारगेट नहीं करेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव इज सेल्स, और यूजुअली सेल्स ही होता है कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, अगर हम उनका एंड गोल देखें तो हम उसके लिए, अगर बहुत ही रूकी बिजनेस है, इफ इट इज अ वेरी बेबी बिजनेस, देन 5 to 7,000 we can set monthly budget. Okay. If it is around 2-year, 3-year-old company, then we can set 15,000. Okay, got it. Thank you. Yes, Shubhashi. मैम हमारा जो होता है ना कि पे जो हम लोग पर लीड का जैसे कॉस्ट हम कर रहे हैं बजट में,
तो वो हाँ। हमारा क्लिक जैसे हम लोग मैसेज करें, तो जितने लोग हम लोगों को मैसेज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो पैसा डिडक्ट होता है, राइट? एड मैनेजर से। वो डिडक्ट होता है आपकी इम्प्रेशन से, मतलब कि देखो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे तो आपको ये चीज सिलेक्ट करने नहीं मिलती कि आपको किस क्यों पैसे चार्ज होंगे। When you have a good budget, let's say आपका 5,000 above budget है or more than that, so you will be also like if your budget is low, then you will be charged for impressions. When your objective is like website visits or so you will be charged for per click. मतलब clicks के लिए charge होता है, click के basis पे होता है। बट ये एक क्लिक का कितना पैसा ले रहा है, एक इंप्रेशन का कितना ले रहा है, वो हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, वो नहीं बताता, रिवील नहीं करता है। ठीक है, हाँ। Okay. So you will get charged for impression, number of times people are seeing your advertisement, or you can also be charged for the clicks. Charge for the clicks कि कितना क्लिक के पैसे काट रहा है वो, आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं और कैसे काट रहा है वो पैसे। और वो आपको दिखाता भी है, मतलब अगर हम एड चला रहे हैं तो हमको दिखाता भी है कि एक क्लिक का कितना कॉस्ट जा रहा है, 160 रुपीज जा रहा है, 40 रुपीज जा रहा है, 30 रुपीज जा रहा है, वो दिखाएगा भी आपको अगर आप एड चला रहे हैं, बूस्टिंग पे नहीं दिखाता है। ओके ओके ओके। सो नहीं हम लोग जैसे अभी एड का बजट सेट किए, तो एड का बजट में वो पर जैसे ऐसे नॉर्मल गूगल एड्स का जो होता है ना वो क्लिक करते हैं, बट इसमें तो क्लिक करेंगे तो किस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे बूस्ट के ऊपर? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी हमने सिलेक्ट किया वेबसाइट्स, तो हम आगे जाके वेबसाइट की यूआरएल डालेंगे। तो जब खुशी के लिए, so when you are running advertisement, if you have selected the objective clicks, then you will also put a URL at the end. जब भी अब हम यहाँ पे हमको बोलेगा वो URL put करने के लिए। देखो यहाँ पे अभी लर्न मोर, देखो यहाँ पे मेरी लिंक ट्री एड गोल जो है उसने मेरे लिंक इन बायो ले लिया, उसको मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ, मैं दूसरी यूआरएल डाल दूंगी यहाँ पे, तो वो क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मतलब वहां पे बटन आती है लर्न मोर, मैसेज हियर या जो भी रहेगा, तो लर्न मोर है मतलब वेबसाइट पे जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मैसेजेस चाहिए, प्रोफाइल प्रोफाइल विजिट चाहिए या क्लिक्स चाहिए कहीं पे। ओके हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक्स। यस मोनिका। मैम ये मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं तो हम उनके पेज पे चलाएंगे कि हम अपने पेज पे चलाएंगे, बेस्ड ऑन विच वी आर चार्जिंग? ये दोनों होता है। देखो एक इफेक्टिव अप्रोच ये है कि हम क्लाइंट के एड मैनेजर से चलाएं, उनके क्लाइंट की प्रोफाइल से। अगर अभी तो खैर उनकी पोस्ट है तो उन्हीं की प्रोफाइल से जाएगा, दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट व्हेन वी रन एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक एड मैनेजर, तो कई बार क्या होता है कि फ्रीलांसर अपने फेसबुक एड से ही उनका अकाउंट बना के चला देते हैं, बट एक सही तरीका ये होता है कि उन्हीं के फेसबुक एड अकाउंट से हम चलाएं एड। देन पेमेंट तो फिर उनको चार्ज होना चाहिए ना, देन व्हाई डू वी चार्ज फ्रॉम देम? Okay, so there are two things. We are setting the budget. We are running advertisement for them. Okay, तो इसका बजट अलग होगा, बट हमारा सर्विस चार्जेस है ना कि भाई हम तुमको एड चला के दे रहे हैं, इतना माइंडफुली टारगेट ऑडियंस, बजट, डेज, सब कुछ सिलेक्ट करें, तो वो हमारे अलग से सर्विस चार्जेस होंगे। Okay. Sometimes people also do it on a performance marketing basis, like okay, I will if our for the specific lead, जितनी लीड मिल रही है उसके लिए I will be charging you this much, or the 30% of the ad budget should be your service charge basically. अगर 10,000 का चल रहा है तो 3,000 का आपका सर्विस चार्ज होना चाहिए। तो ये लीड्स की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि कितना उनका लीड जनरेट हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम चार्ज कर सकते हैं। बट ये हम इनिशियली नहीं करना चाहिए, जब आपने 2-3 बार ऐड चला ली और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इतना आ जाता है, और बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे आई टोल्ड यू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ फिटनेस ट्रेनर, तो वहां पे मैंने टारगेट कर दिया था, मुझे पता है टारगेट ऑडियंस बहुत है, तो हम क्लिक्स प्रॉमिस कर सकते हैं। सेम व्हेन आई वर्क फॉर दिस मशीनरी कंपनी जो कि प्रोडक्शन हाउस है, जो एक्सरे मशीन बनाते हैं, फिर टारगेट ऑडियंस मुझे नहीं पता कितना है, कितने लोग परचेस करेंगे, क्लिक्स करेंगे, वहां पे बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। तो वहां पे सिर्फ हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ आपका रीच अच्छा होगा, या जितना हमको यहाँ पे दिखाता है ना कि 31,000 to 81,000 एस्टिमेटेड रीच दिखा रहा है ऊपर, इसका हम
एटलीस्ट 30% कर सकते हैं कि मतलब मैं ये तो बता दूंगी कि 10,000 तक लोग मैं आपको पहुंचा दूंगी, रीच आपकी इतनी तो हो ही जाएगी। तो ये हम KPI में लिख सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ हाँ, यस यस नथुलाल। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने